حسد دراصل خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے۔ زندگی ہر روز ہمیں ایک نیا سبق دیتی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اسے پڑھیں بلکہ اس لیے تاکہ ہم اسے سمجھیں۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حالت میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے پر باپ۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ جس رات تمہیں بے چینی ہو، نیند نہ آ رہی ہو تو سمجھ جاؤ بہت جلد تمہیں دو چیزیں ملنے والی ہیں۔ اول گمشدہ قیمتی چیز، دوم بے تحاشا دولت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک نرم کلامی اور چھوٹے بڑے سے السلام علیکم کہنا عبادت ہے، اور بلا شبہ بیہودہ گوئی اسلام کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک کی طرف سے مدد کا منتظر رہے، اور کارخانے قدرت میں تفکر کرنا عبادت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ عورت کی بابرکت ہونے کی علامات میں سے ہے، نمبر 1، اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو، اس کا مہر آسان ہو یعنی بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو۔ نمبر 3، اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو۔ جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ محبت کو دعوت دی تھی۔ ایک عورت کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تو گھر کے باہر 3 اجنبی بزرگوں کو بیٹھے دیکھا۔ عورت کہنے لگی، میں آپ لوگوں کو جانتی نہیں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ بھوکے ہیں، چلے اندر چلیں، میں آپ لوگوں کو کھانا دیتی ہوں۔ ان بزرگوں نے پوچھا، کیا گھر کا مالک موجود ہے؟ عورت کہنے لگی، نہیں، وہ گھر پر موجود نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، پھر تو ہم اندر نہیں جائیں گے۔ رات کو جب خاوند گھر آیا تو عورت نے اسے سارے معاملے کی خبر دی۔ وہ کہنے لگا، انہیں اندر لے کر آؤ۔ عورت ان کے پاس آئی اور اندر چلنے کو کہا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تینوں ایک ساتھ اندر نہیں جا سکتے۔ عورت نے پوچھا، وہ کیوں؟ ایک نے یہ کہتے ہوئے وضاحت کی، اس کا نام مال ہے، اور اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا، اور اس کا نام کامیابی ہے، اور دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کیا، اور میرا نام محبت ہے۔ یہ کہتے ہوئے بات مکمل کی کہ جاؤ اپنے خاوند کے پاس جاؤ اور مشورہ کر لو کہ ہم میں سے کون اندر آئے۔ عورت نے آخر خاوند کو سارا ماجرا سنایا۔ وہ خوشی سے چلا اٹھا اور کہنے لگا، اگر یہی معاملہ ہے تو مال کو اندر بلا لیتے ہیں، گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ عورت نے خاوند سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، کیوں نہ کامیابی کو دعوت دیں۔
मियाँ बीवी की ये बातें उनकी बहू घर के एक कोने में बैठी सुन रही थी। उसने जल्दी से अपनी राय दी, क्यों ना हम मोहब्बत को बुला लें और हमारा घराना प्यार और मोहब्बत से भर जाए। खामद कहने लगा, बहू की नसीहत मान लेते हैं, जाओ और मोहब्बत को अंदर ले आओ। औरत बाहर आई और बोली, आप में से मोहब्बत कौन है, वो हमें मेहमान नवाजी का शरफ बख्शे। घर वालों का मतलूबा शख्स उठा और अंदर जाने लगा तो उसके दोनों साथी भी खड़े हो गए और उसके पीछे चलने लगे। औरत हैरानो परेशान उनका मुंह देखने लगी। औरत ने माल और कामयाबी से कहा, मैंने तो सिर्फ मोहब्बत को दावत दी थी, आप दोनों क्यों साथ जा रहे हैं? दोनों ने जवाब दिया, अगर तुम माल या कामयाबी में से किसी को बुलाया होता तो बाकी दोनों बाहर रहते, लेकिन तुमने चूंकि मोहब्बत को बुलाया है। ये जहां हो हम उसके साथ होते हैं, जहां मोहब्बत होगी वहां माल और कामयाबी भी मिलेगी। अपने दिल में और अपने अजीजों और साथियों के दिलों में मोहब्बत पैदा कीजिए, आप एक कामयाब शख्सियत के मालिक बन जाएंगे। याद रखिए, अगर आप मोहब्बत के साथ दूसरे से पेश आए तो आपकी मिसाल उस चिराग की सी है जिसके गिर्द लोग अंधेरे में इकट्ठे हो जाते हैं। तंगदस्ती से निजात का अमल। आज आपके सामने हर किस्म की बीमारी, परेशानी, रुकावट और घर में खैर व बरकत के हवाले से कुछ खास अमाल बयान करूंगा। ये तंगदस्ती से निजात का अमल है। फजर की नमाज के बाद बावजू होकर अव्वलो आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद एक मर्तबा सूरत यासीन, सूरत मुजम्मल पढ़ें। तंगदस्ती से निजात का अमल दूसरा बयान करूंगा। ईशा की नमाज के बाद बावजू होकर अव्वलो आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद 313 मर्तबा सूरत फलक पढ़ें। सूरत फलक का वजीफा जुमेरात, जुमा और हफ्ते के दिन ये अमल करना है तो महीने में कुल 4 दफा ये अमल होगा। सूरत फलक का वजीफा और हफ्ते 1 बार करेंगे, महीने में कुल 4 मरतबा। और सूरत यासीन और सूरत मुजम्मल जो आपने रोज़ाना नमाज फजर के बाद पढ़नी है वो रोज़ाना की बुनियाद पे अमल करना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तंगदस्ती से निजात का अमल है। अल्लाह पाक आपको बीवी रिज़्क अता फरमाएगा, बेगुमा जगह से रिज़्क के दरवाजे खुलेंगे, खैर व बरकत होगी, घर में परेशानियां, बीमारियां, तकलीफें हैं वो दूर होंगी। सोते वक्त अव्वलो आखिर 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर 300 मरतबा या जब बारू या कहारू का विर्द करके किसी से बात किए बगैर सो जाए। जिसने जादू किया या दफन किया होगा सब नजर आ जाएगा। लोगों के मुंह बंद करने से बेहतर है कि कान बंद कर ले, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाइयां देनी पड़ती हैं। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तौलता है। तंग दिमाग लोगों के साथ मसला ये होता है कि उनका मुंह हमेशा खुला रहता है। जब किस्मत और हालात दोनों साथ न दें तो फिर उनकी बात सुननी पड़ती है जिनकी कोई भी नहीं सुनता। एक माशरा तब तरक्की करता है जब उस माशरे के बुजुर्ग दरख्त लगाते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि वो कभी उसके साए में नहीं बैठ सकेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो औरत अपने खामद की इजाज़त के बगैर घर से निकल जाया करती है वो घर आने तक या खामद के राजी होने तक अल्लाह ताला की नाराजगी में रहती है। अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों की तरफ मत देखो, जिसने तुम्हें पैदा किया वो तुम्हारी ज़रूरियात भी पूरी करेगा। तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से हैं, ख्वाहिश छोड़ दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। जिस शख्स में ये निशानी हो तो समझ जाओ कि वो तुमसे मोहब्बत तो करता है मगर जाहिर नहीं करता। और वो निशानी ये है
कि आपकी बातों में दिलचस्पी लेगा, आपसे बात करते वक्त वो खुश होगा और बोर नहीं होगा, और वो आपको बार बार देखने की कोशिश करेगा। औरत के जिस्म के 3 हिस्से खूबसूरत हों तो मर्द चाहकर भी उसको छोड़ नहीं पाता। नंबर 1 आंखें, नंबर 2 चेहरा, नंबर 3 हाथ, नंबर 4 दिल। जितने राजदार कम बनाओगे उतने ही धोखे कम खाओगे, क्योंकि हमारी कमजोरियां ही दुश्मन को ताकतवर बनाती हैं। नरम दिल लोग बेवकूफ नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रही हैं, लेकिन वो नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो खूबसूरत दिल रखते हैं। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक जिंदगी के हर पहलू पर नजर डालकर देख, अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं है, क्योंकि वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमारे ताल्लुकात और हम लोग इंटरनेट और मोबाइल नंबर्स के मोहताज हैं। जिस दिन ये दोनों ऑफ हो गए हम सब एक दूसरे को खो देंगे। मोहब्बत और इबादत 2 ऐसे काम हैं कि आप किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते, क्योंकि इनका ताल्लुक रूह से है। लड़की जहेज में तरबियत लेकर आए और मर्द हक मोहर में इज्जत दे तो बेहतरीन घर तश्कील पा सकता है। मर्द के साथ अना का मुकाबला करने वाली औरत बेवकूफ होती है, वो उससे अपना दुश्मन बना लेती है। अकड़पन और जिद करके मर्द से बात मनवाई जा सकती है, लेकिन उसके दिल में अपनी मोहब्बत और इज्जत नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर कभी कोई कोताही हो जाए उससे या कोई गिला हो तो उसकी मेहरबानी याद कर लिया करें। खालिक से मांगना सुन्नत है, अगर दे दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत। मखलूक से मांगना जिल्लत है, अगर दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। इंसान का सवाल उस वक्त शुरू होता है जब वो समझने लगता है कि मेरी वजह से दूसरों को रिज़्क मिल रहा है। हैसियत और रुतबे का घमान भी ना करें। याद रखें, उड़ान हमेशा जमीन से शुरू होकर वापस जमीन पर ही खत्म होती है। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है।